دوسرے جنم کی اس کہانی کو دوسری کہانیوں پر فوقیت حاصل ہے، کیونکہ اس کہانی میں اصرار و تجسس بھی ہے اور سائنس و قرآن پر بحث بھی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہی میں نے یہ لکھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سائنس کا دور ہے۔ اس دور میں مذہب کا اثر کم سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ ایسا کہنے والے کسی حد تک غلط ہیں۔ میں نے اسی نقطے کو مرکز بنایا ہے۔ سائنس و اسلام پر ایسی کوئی کہانی شاید ہی آپ نے پڑھی یا سنی ہو۔ اس کہانی میں تھرل بھی ہے اور سسپینس بھی، پر اسراریت بھی ہے اور سائنس بھی، یعنی ایک کہانی میں کئی قسم کی کہانیاں ہیں۔ یہ تجربہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ والسلام، پرویز بالگرامی۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے دوسرا جنم ایپیسوڈ نمبر 40۔ کہیں یہ وہی پروفیسر عثمان تو نہیں ہیں جو امریکہ کے کسی ادارے میں ریسرچ کر رہے تھے اور اب پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا سوچ کر وہاں سے فرار ہوئے ہیں؟ ہاں، یہ وہی تو ہیں۔ تب تو انہیں میرا سلام ہے۔ واقعی انہوں نے مسلمانوں کی خاطر بہت بڑی قربانی دی ہے۔ آؤ تمہیں پروفیسر صاحب سے ملواتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے گاڑی کو واپس بنگلے پر لے جانے کے لیے کہا۔ کیا پروفیسر عثمان ایک دم سے سناٹے میں آ گئے تھے، اپنی جگہ سن ہو گئے تھے۔ انہیں اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا تھا۔ انہوں نے ثاقب وغیرہ کی طرف دیکھا، پھر غلام رسول کی طرف۔ وہ بھی دم بخود تھا، جیسے اس کے سامنے آتش گیر ماتا رکھا ہو اور جو کسی بھی لمحے پھٹنے والا ہو۔ کمرے میں ایک گہرا سناٹا طاری تھا۔ سب نے تحیر زدہ نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر اپنی اپنی نگاہیں ثاقب کے چہرے پر مرکوز کر دیں۔ وہ کسی فاتح جرنیل کے انداز میں کھڑا تھا، مسکراتا ہوا ان سب کی حیرت سے جیسے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہونٹوں کی مسکراہٹ پھیل گئی تھی اور آنکھوں میں ایک شفاف چمک ابھر آئی۔ وہ اپنے اس کارنامے پر نازاں لگ رہا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ غلام رسول نے چند لمحوں کے بعد گہرے سناٹے کو توڑتے ہوئے کہا۔ تم نے یہ بربریت کس لیے کی؟ یہ وحشیانہ اور انسانیت سوز حرکت ہے۔ جناب من، وہ انسان کب تھے جو ان کے ساتھ انسانیت کا سلوک کیا جاتا؟ ذرا عمران سے پوچھیں، کیا وہ انسان تھے؟ نہیں، وہ لوگ ہرگز انسان نہیں ہو سکتے، عمران نے سلسلاتی آواز میں کہا۔ وہ انسانیت کے ماتھے پر نہ مٹنے والا بدنما داغ تھے۔ اس ملک میں رہتے ہیں، یہاں کی زمین کا پیدا کردہ اناج کھاتے ہیں، یہاں کی ہوا میں سانس لیتے ہیں اور گن گاتے ہیں اپنے آقا کے۔ ایسے غداروں کو تو ایک لمحے کے لیے بھی اس سرزمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ ان کے آقا کا ملک ترقی یافتہ ہے تو ہوا کرے، مگر وہ خدا تو نہیں ہے کہ ہم ان کے آگے سر بسجود ہو جائیں۔ مجھے پوری تفصیل بتاؤ، پروفیسر نے عمران سے کہا۔ ہمیں اطلاع ملی تھی کہ ہمارے بنگلے پر جن لوگوں نے حملہ کیا ہے وہ چوک بازار کے ایک گھر میں جمع ہے۔ تمہیں کس نے بتایا کہ وہی لوگ تھے؟ کل رات میں جب ایک پجیرو ہمارے بنگلے کے سامنے رکی تھی تو اس میں 3 آدمی تھے۔ اسی وقت ہمارا ایک بندہ ہم سے ملنے آ رہا تھا۔ اس نے اجنبی چہرہ دیکھا تو مڑ گیا، کیونکہ اسے خبر تھی کہ کچھ ایسے لوگ اس بنگلے میں ٹھہرے ہوئے ہیں جو تحریکی نہیں ہیں۔ اس نے سمجھا کہ وہ لوگ بھی ہم سے ملنے آئے ہیں، اسی لیے وہ لوٹ گیا۔ اتنی دیر میں اس نے سب کا جائزہ لے لیا تھا۔ آج جب ان میں سے ایک کو اس گھر میں دیکھا تو ہمیں خبر دینے آ گیا، کیونکہ اس نے سن لیا تھا کہ ہمارے ہاں فائرنگ ہوئی ہے۔ ہم اسی کے مشورے پر اس گھر میں گئے تھے۔ پھر بھی ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا، غلام رسول نے کہا۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ وہ خون اشام، سفاک اور بے رحم درندے تھے، ثاقب بولا۔ آپ نے انہیں نہیں دیکھا، آپ انہیں نہیں جانتے،
اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ انسان بھی اتنے شکیل قلب ہوتے ہیں۔ ان میں ایک بھی ایسا شخص نہیں تھا جس کے ہاتھ اس طرح کے معصوم مسلمانوں کے خون سے رنگے نہ ہوں۔ وہ اپنے آقا کے اشاروں پر ہمارے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے، ملک کو کمزور بنانے کے لیے مسجدوں، امام بارگاہوں، گرجوں اور مندروں میں فائرنگ کرتے تھے۔ ان کے دل کے کسی کونے میں بھی خوف خدا، رحم اور انسانیت کی رمق تک نہ تھی۔ ان کا کوئی مذہب نہ تھا اور وہ صرف درندے تھے۔ ثاقب میاں پروفیسر نے کہا، میں تمہاری اس بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ وہ جو بھی تھے، مگر تمہارا فرض تھا کہ تم قانون کو ہاتھ میں نہ لیتے، قانون کے پاس جاتے۔ میں یہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ قانون اس بنگلے پر انہیں گرفتار کرنے نہیں جائے گا اور مجرموں کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ قانون کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے میں نے قانون ہاتھ میں لے لیا۔ یہ تم کیسے کہہ رہے ہو؟ کس بنا پر کہہ رہے ہو کہ قانون ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتا؟ آخر محکمہ پولیس بنا کس لیے ہے؟ محکمہ پولیس بھی مجبور ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کو قانون نے باندھ رکھا ہے۔ پھر ہمارے مقابلے میں ظالموں کے زر خرید ایجنٹ ہیں۔ اگر ان سے ہمدردی کی جائے تو وہ یہی سمجھیں گے کہ ہم ان کے مقابلے میں کمزور ہیں۔ پھر وہ عمران کی طرف مڑ کر بولا، مولانا کو سمجھاؤ۔ ارے بھائی، میں مولانا نہیں ہوں، وہ جلدی سے بولے۔ بھائی میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ عزت دے رہا ہوں تو جناب، کفار مقبوضہ کشمیر میں ہمارے نہتے بھائیوں کو گولیوں سے اڑا رہے ہیں، ہماری بہنوں کے سروں سے ردائیں کھینچ رہے ہیں، کیونکہ وہ کافر ہیں اور کافر کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ان سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ یہ ہمارے بھائی ہوتے ہوئے بھی ان کافروں کے دوست بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ دیمک ہیں، دیمک جو ہمارے اتحاد کی عمارت کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے انہیں موت کی نیند سلا دیا۔ مگر یہ تو سوچو اس کا انجام کیا ہوگا۔ دشمن تو ہماری طاق میں ہے ہی، اب پولیس بھی ہمارے پیچھے لگ جائے گی۔ بھارتی پولیس سے تو آنکھ مچولتی کھیلتے ہی ہیں، اب یہاں بھی کھیلیں گے، ثاقب نے ہنس کر کہا۔ ویسے ایک بات بتا دوں، میں اس آپریشن پر صرف اس لیے گیا تھا کہ آپ کے دشمنوں کا پتہ لگاؤں، سو میں نے پتہ لگا لیا۔ کیا اتنی بڑی خبر چھپائے بیٹھے ہو؟ جلدی سے بتاؤ وہ لوگ کہاں چھپے ہیں؟ آپ جنہیں معمولی سمجھ رہے ہیں وہ بہت اونچے لوگ ہیں، یہاں ایک سفارت خانے میں چھپے بیٹھے ہیں۔ یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ انہیں کسی طرح باہر لاؤ، پروفیسر نے کہا۔ ہم انہیں باہر کیا لائیں گے، وہ خود ہمیں باہر نکالنے کی سازش میں لگے ہوئے ہیں۔ پولیس کو بھی ہمارے پیچھے لگا دیا ہے، وہ بھی اب آپ کی تلاش میں ہے۔ مزیدار بات یہ ہے کہ ہمیں اس مکان میں بھی پناہ نہیں ملے گی۔ اگر میں آپریشن پر نہ جاتا تو اب تک یہاں ریڈ ہو چکا ہوتا۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، جتنی جلدی ممکن ہو یہ جگہ چھوڑ دیں۔ یہ جگہ چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے؟ آنے دو ہاتھ کر لیں گے، غلام رسول بولا۔ دشمن سے کھلے میں جنگ کرنا زیادہ بہتر ہے تاکہ پولیس کی مداخلت نہ ہو۔ عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یہاں سے نکل جایا جائے۔ یہاں سے نکل کر فائدہ، وہ اگر حملہ کرتے ہیں تو ہماری منشا بھی یہی ہے، ہم تو خود ان سے دو ہاتھ کرنے آئے ہیں۔ آپ نے شاید سنا نہیں، انہوں نے آپ لوگوں کے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کرائی ہے اور انٹرپول کے ذریعے یہ رپورٹ بھجوائی ہے کہ پروفیسر عالمی دہشت گرد ہیں، اور کسی عالمی دہشت گرد کو گرفتار کرنے کا خواب ہر پولیس افسر دیکھتا ہے۔ نہ جانے کتنے افسران آپ لوگوں کی طاق میں ہیں، اب دو طرفہ مقابلہ کرنا ہے۔ کوئی دوسری جگہ ہے؟ پروفیسر نے پوچھا۔ تلاش کرنا پڑے گی، کیونکہ ہم آپ کو اپنے ہیڈ کوارٹر میں رکھ نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں اپنے تحفظ کی بھی ضرورت ہے۔ آپ کسی ہوٹل میں ٹھہر جائیں، بلکہ ابھی چلے جائیں۔ آؤ غلام رسول، یہ کہہ کر پروفیسر عثمان کھڑے ہو گئے۔ اس بیگ کو بھی رکھ لیں، اس میں داڑھی، مونچھیں، میک اپ کا دیگر سامان بھی ہے، اگر ضرورت پڑی تو کام آئے گا۔ عمران، پروفیسر عثمان اور غلام رسول اس گھر سے باہر آ گئے۔ اب ان کے تصرف میں بھی کوئی گاڑی نہیں تھی۔
इस शहर में वो फिर से तन्हा हो गए थे। अब उन्हें अपनी लड़ाई खुद लड़ना थी, इसलिए बाहर आकर वो किसी टैक्सी की तलाश में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। काफ़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक टैक्सी नज़र आई। वो तीनों उसमें बैठ गए। बैठते वक्त इमरान ने कहा, किसी अच्छे होटल में चलना है जहाँ की सर्विस 5 स्टार जैसी हो। होटल के दरवाजे पर उतरकर प्रोफेसर ने कहा, एक साथ दाखिल होना अक्लमंदी नहीं है, सबको अलग अलग कमरे हासिल करना है। और फिर वो आगे बढ़ते चले गए। काउंटर पर पहुंचकर उन्होंने कमरा हासिल करने के लिए शनाख्ती कार्ड आगे बढ़ा दिया। उन्हें पहली मंजिल का कमरा नंबर 103 मिला था। वो चाबी लेकर बैरिक के साथ ऊपर चले गए और उनके बाद गुलाम रसूल ने कमरा हासिल किया। फिर इमरान पहुंचा और उसने अभी कमरे के बारे में पूछा भी नहीं था कि एक खिली हुई रंगत वाला शख्स काउंटर पर आया और बोला, अभी जो साहब आए हैं उन्हें कौन सा कमरा दिया है? क्यों? काउंटर क्लर्क ने पूछा। जो पूछा जाए वही बताओ, समझे? उस शख्स ने दुरुस्त लहजे में कहा। पहले अपना तारफ तो कराएं। मेरा तारफ ये है, ये कहकर उसने अपना कार्ड निकाल कर काउंटर क्लर्क के सामने रख दिया। क्लर्क ने कार्ड देखते ही रजिस्टर उनके सामने फैला दिया। उस शख्स ने मोबाइल ऑन पर कमरे का नंबर और नोट किया और फिर बोला, मैं इन्हें चेक करके आता हूँ। जैसे ही वो सीढ़ियों की तरफ गया, क्लर्क ने बड़बड़ाने के अंदाज में कहा, हर एक को हमारे ही ग्राहक मुश्तबा लगते हैं, रकम भी पहुँचा आता हूँ, फिर भी हमारे कस्टमर्स को तंग करने आ जाते हैं। इमरान ने हालात की नज़ाकत को भांप लिया था। वो समझ गया कि पूरे शहर की पुलिस प्रोफेसर की तलाश में निकल पड़ी है, उन्हें होशियार करना ज़रूरी था। ये सोचकर वो मुड़ा ही था कि क्लर्क ने पूछा, फरमाइए। शायद आप गुस्से में थे, इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। दरअसल मैं ये मालूम करना चाहता था कि मिस्टर हम्फ्रे नामी कोई शख्स यहाँ ठहरा है। वो कल अमेरिकन फ्लाइट से आया है। इमरान ने क्लर्क से पूछा। जी नहीं, इस नाम का कोई शख्स यहाँ नहीं आया। शुक्रिया, मैं कैंटीनेंटल में देख लेता हूँ। ये कहकर वो बाहर की तरफ बढ़ता चला गया। वो टैक्सी स्टैंड की तरफ पहुंचा और मोबाइल निकालकर प्रोफेसर का नंबर दबाया। दूसरी तरफ घंटी बज रही थी मगर कोई उठा नहीं रहा था। उसकी कॉल को प्रोफेसर रिसीव करते तो कैसे, उनके सामने किसी जिन की तरह वही शख्स खड़ा हुआ था। उसके हाथ में रिवाल्वर था और रिवाल्वर की नाल प्रोफेसर के सीने की तरफ उठी हुई थी। आप आकर चाहते क्या हैं? प्रोफेसर ने नवारत से पूछा। सिर्फ इतना बता दो कि इस शहर में तुम्हारे कितने एजेंट हैं और पाकिस्तान में तुम क्या करने आए हो। भाई, ये मेरा मुल्क है, मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकता हूँ, प्रोफेसर ने कहा। मगर अब तुम किसी दूसरी ताकत के हाथ में खिलौना बन चुके हो। बस ये बता दो कि वो कौन है, तुम किस के लिए काम कर रहे हो। मैंने कहा ना कि मैं किसी के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। अब मैं बहसीयत एक पाकिस्तानी रिसर्च वर्क करूँगा। फिर झूठ बोले, तुम किसी ख़ास मकसद से यहाँ आए हो। तुम्हारे आने का मकसद क्या है? सीधे सीधे बता दो, वरना हमारे दफ्तर में ले जाकर जब 3rd डिग्री आजमाई तो तुम खुद अक्लमंद हो, समझ जाओ तुम्हारा क्या हशर होगा। नवार्द का रुख प्रोफेसर की तरफ था और पीठ दरवाजे की तरफ, इसलिए उसने ये नहीं देखा कि दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा है। बाहर जो कोई भी था नहायत चालाक था और वो चींटी की रफ्तार से दरवाज़ा धकेल रहा था ताकि आवाज़ ना होने पाए। दरवाज़ा इतना खुल चुका था कि उसमें से एक आदमी बाआसानी अंदर आ जाए। उस खुले हुए दरवाजे से गुलाम रसूल अंदर दाखिल हुआ और उसके हाथ में भी रिवाल्वर था। वो गिरबा पा चलता हुआ नवार्द के अकब में पहुंच गया। नवार्द सवालात करने में मुनहक था और उसके सर पर क़यामत टूट पड़ी। आंखों के आगे खोपड़ी के अकब से नीले पीले सूरज तलू होकर आने लगे। वो चकराकर फर्श पर गिरा कि गुलाम रसूल बोला, जितनी जल्दी मुमकिन हो निकल चलें, पता नहीं इसके साथ कितने आदमी और होंगे। प्रोफेसर उस्मान ने कट बैग बगल में दबाया और बाहर निकल आया। कमरे को ला करके वो दोनों नीचे की जानब बढ़ने लगे। ठहरें, गुलाम रसूल बोला, आप मेरे कमरे में चलें। वो दोनों गुलाम रसूल के कमरे में आ गए। शायद आप पहचान लिए गए हैं, गुलाम रसूल बोला। हाँ, वो यही कह रहा था। अगर आप इस हिलिये हुलिये में नीचे उतरेंगे
तभी प्रोफेसर की जेब में पड़ा मोबाइल फ़ोन वाइब्रेटिंग करने लगा। उसकी थरथराहट से अंदाज़ा हो गया था कि कोई कॉल कर रहा है। प्रोफेसर मोबाइल फ़ोन निकालते हुए बोले, पता नहीं कौन बार बार कॉल कर रहा है। फिर नंबर देखकर बोले, शायद इमरान है। उन्होंने मोबाइल फ़ोन ऑन कर लिया। दूसरी तरफ वाकई इमरान था। प्रोफेसर जल्दी से बोले, तुम कहाँ हो? मैं नीचे हूँ, कई बार कॉल कर चुका हूँ। अपनी इस आदत को बदलें, प्लीज़ रिंग टोन खुला रखा करें। तुम टैक्सी स्टैंड से टैक्सी लो, हम लोग नीचे उतर रहे हैं। इतना कहकर प्रोफेसर ने ऑफ का बटन दबा दिया। अब फटाफट चेहरे पर दाढ़ी चिपकाएं और सिंधी टोपी ओढ़कर शलवार सूट पहन लें ताकि एक नज़र में कोई आपको पहचान ना सके। नीचे दूसरे लोग भी हो सकते हैं। प्रोफेसर ने बहस करना मुनासिब ना समझा और कट बैग में से दाढ़ी निकालकर अपने गालों पर चिपकाई। थोड़ी ही देर में वो किसी सिंधी वडेरे की कापी बन चुके थे। गुलाम रसूल ने भी टोपी और अजरक ओढ़ ली थी और अब दोनों कमरे से निकलकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे थे। जब वक़्त वो दोनों नीचे उतर रहे थे, उसी वक़्त दो नौजवान नहायत तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ते चले आए। वो इतनी तेज़ी में थे कि प्रोफेसर से टकराते टकराते बचे थे। कमरे का नंबर याद है न? एक ने दूसरे से पूछा था। हाँ, सर ने मोबाइल पर यही बताया था। शायद इसी को छठी हिस्स कहते हैं। प्रोफेसर को ऐसा लगा था जैसे वो दोनों उन्हीं के कमरे के बारे में बातें कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने कदम तेज कर दिए। वो दोनों नीचे उतरे और टहलने के अंदाज में रिसेप्शन के सामने से गुजरते हुए बाहर आ गए। उन्होंने अभी गेट पार ही किया था कि सायरन बजाती हुई पुलिस की जीप आ गई और दो जीपों में सवार पुलिस वाले कूद कूद कर नीचे उतरने लगे। प्रोफेसर उस्मान ने सरगोशी के अंदाज में कहा, हरी आप, जल्दी निकल चलो। वो दोनों तेज़ तेज़ कदमों से पार्किंग लॉट में पहुंचे। इमरान टैक्सी में बैठा हुआ था। वो दोनों उसी टैक्सी की पिछली सीट पर बैठ गए। टैक्सी चल पड़ी। अब उनकी टैक्सी बाजार में पहुंच चुकी थी। इमरान ने टैक्सी को रुकने का इशारा किया। टैक्सी रुकते ही वो नीचे उतरा और किराया अदा करके प्रोफेसर और गुलाम रसूल के साथ एक पार्क की तरफ बढ़ता चला गया। पार्क में पहुंचकर एक खाली बेंच पर बैठते हुए वो बोला, प्रोफेसर साहब, आपने अंदाज़ा लगाया? किस बात का? आपकी तलाश ज़ोरों शोर से हो रही है। लगता है कि हर होटल में सादा लिबास वाले तैनात किए गए हैं, क्योंकि जैसे ही आपने कमरा रेज़रू करवाया था, एक सादा लिबास वाला वहाँ रजिस्टर चेक करने पहुँच गया था और आपका नाम देखते ही उसके चेहरे पर कामयाबी की झलक आ गई थी। मैंने खुद देखा था। हाँ, तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है, प्रोफेसर साहब बोले। तो क्यों ना कुछ दिनों के लिए गिलगित शिफ्ट हो जाएं? गुलाम रसूल ने मशवरा दिया। गिलगित क्या पाकिस्तान से बाहर है? वो भी तो इस्लामाबाद ही की अमलदारी का एक हिस्सा है। जब यहाँ की पुलिस हमारी खोज में लग गई है तो क्या वहाँ की पुलिस हमें तलाश नहीं करेगी? अरे बेवकूफ़, हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम हर हाल में करना है, प्रोफेसर ने कहा। लेकिन कैसे करेंगे? इस तरह तो होता है। इस तरह के कामों में हमारा टकराव मामूली मुजरमों से नहीं है, दुनिया की बड़ी ताकतों से है। उनके एक एजेंट को तो ख़त्म कर ही दिया, बाकी दो को कर देंगे तो उनका नेटवर्क हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इमरान ने पहली बार लबे कुशाई की। बात 100% दुरुस्त है, प्रोफेसर उस्मान ने कहा। अब हमें सीधे सीधे उन लोगों पर वार करना है। वो लोग सफारत खाने में छुपे हुए हैं ना, हम उन्हें वहीं घेरेंगे। मगर कैसे? तुम लोग देखते जाओ। उन लोगों से कैसे निपटा जाए ये तो बात की बात है, मगर अभी जो मसला है उसका कोई हल सोचा है? गुलाम रसूल ने कहा। क्या? वो ये कि रात कहाँ गुजारी जाए? इतना बड़ा शहर है मगर उसे हमारे लिए तंग कर दिया गया है। तुम फिक्र ना करो, उसका हल भी मेरे पास है, आओ मेरे साथ। ये कहकर प्रोफेसर पार्क से निकलने के लिए बाहर की तरफ बढ़े। हम कहाँ जाएंगे ये तो बताओ। वो तीनों पार्क से निकले। बाहर टैक्सी और कुछ रिक्शाओं की कतार सी लगी हुई थी। प्रोफेसर ने एक टैक्सी वाले से कहा, 0 पॉइंट में कुछ देर के लिए ठहरूंगा, फिर चौक बाज़ार में उतार देना। वो लोग टैक्सी में बैठ गए। 0 पॉइंट क्यों जा रहे हैं? शहर में हर तरफ खतरा है, इसलिए वहाँ किसी चारपाई वाले
होटल में बैठकर प्लानिंग करना है। प्रोफेसर ने भी फ्रेंच ही में जवाब दिया। नहीं, मेरा ख्याल है हमें रात तक इंतज़ार कर लेना चाहिए और रात के वक्त सफारत खाने पर धावा बोल देना चाहिए। इस बार गुलाम रसूल ने इंग्लिश में कहा, क्योंकि इमरान फ्रेंच समझ में ना पाने की वजह से हैरत भरी निगाहों से उन्हें देख रहा था। गुलाम रसूल की बात सुनते ही इमरान ने कहा, ताज़ा इतला के मुताबिक वो दोनों सफारत खाने में नहीं, एक सफारतकार के निजी बंगले में ठहरे हुए हैं। वो बंगला किसी किले से कम नहीं है। कोई बात नहीं, उस किले में सुरंग मैं लगाऊंगा। प्रोफेसर ने किसी आदी लड़ाका की तरह जवाब दिया। 0 पॉइंट आ चुका था। सड़क के दोनों अतराफ में बने होटलों में चारपाइयाँ बिछी हुई थी। कुछ लोग बैठे थे तो कुछ लेटे थे और वो तीनों भी एक होटल के बाहर बिछी चारपाई पर बैठ गए। इमरान ने टैक्सी वाले को 200 रुपये देकर कहा, भाई हमें एक साहब का इंतज़ार करना है, ज़्यादा देर भी हो सकती है, अगर कोई सवारी मिले तो चले जाना। ड्राइवर के हटते ही इमरान ने ऊंची आवाज़ में पूछा, तो अब खुल कर बताएं क्या करना है। करना क्या है, हमें उन दोनों को ख़त्म कर देना है ताकि यहाँ का नेटवर्क टूट जाए। नया नेटवर्क इतनी आसानी से बन नहीं पाएगा। जितने दिनों में ये लोग नेटवर्क बनाएंगे उतने दिनों में कोई नया मुहब्बे वतन उनकी बीक कनी के लिए पैदा हो जाएगा। वतन दुश्मन 1-2 होते हैं, वतन परस्त लाखों करोड़ों। प्रोफेसर के लहजे में अज़म था, हुब्बुल वतनी का जज्बा था। उसी तरह की बातों में वक्त गुजरता रहा। नए नए तरीकों पर बहस होती रही और शाम का अंधेरा हो गया। चलो वापस चलते हैं, कहते हुए प्रोफेसर खड़े हो गए। उन लोगों ने इस बार बस से सफ़र किया और लौटकर शहर आ गए। प्रोफेसर ने दाढ़ी लगा रखी थी। गुलाम रसूल ने भी अपने हुलिये में हल्की फुल्की तब्दीली कर ली थी। फिर भी वो तीनों होशियार थे। उन्हें एहसास था कि यहाँ चप्पे चप्पे पर उनकी तलाश जारी है। तकरीबन 11 बजे तक उन्होंने बाजारों में आवारा गर्दी की। फिर वो इमरान के साथ उस मरकज़ पर गए। इमरान ने वहाँ के सरकर्दा अफराद से हाथ पैर जोड़कर मज़ीद 2 पिस्तौल हासिल किए। असला हासिल करने के बाद उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और इमरान की रहबरी में उस बंगले की तरफ चल पड़े जहाँ डेविड के होने की इत्तला थी। अल्फ्रेड मारा जा चुका था, इसलिए अब बड़ों में वही एक बचा था, या फिर वो पुरइसरार औरत जो प्रोफेसर के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम की इंचार्ज थी। औरत का तो पता नहीं था, सिर्फ डेविड के बारे में इल्म हुआ था जो उस बंगले में छुपा हुआ था। वो बंगला एक पोश इलाके में था। ऐसे इलाकों की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि वहाँ पड़ोस में कौन रहता है ये पड़ोसी को भी खबर नहीं रहती। चौड़ी चौड़ी बड़ी बड़ी सड़कें होती हैं, मगर रहने वालों के दिल कुशादा नहीं होते। सड़कों पर वीरानी थी, मगर बंगले का गेट जगमगा रहा था। बंदूक थामे ऊँघते हुए चौकीदार को भी नज़र आ रहे थे। उन तीनों ने बंगले के अतराफ का जायज़ा लिया और अकबी हिस्से को हस्बे ख्वाहिश पाया। उधर निस्बतन अंधेरा भी था और दीवार भी इतनी ऊंची ना थी कि उसे फलांगा ना जा सके। वो तीनों दीवार के नीचे जाकर खड़े हो गए। मैं घोड़ा बनता हूँ, तो मेरी पीठ पर चढ़कर दीवार फलांग जाओ, गुलाम रसूल ने कहा। नहीं नहीं, मैं घोड़ा बनता हूँ, आप मेरी पीठ पर सवार होकर दीवार पर चढ़ जाएं, इमरान ने कहा। इसी तरह पहले आप करते रहे तो सुबह हो जाएगी। इमरान जो जवान है, लड़ाई भड़ाई का आदी है, इसलिए वो पहल करे, अंदर कूद जाए और फिर हम भी आ जाएंगे, प्रोफेसर ने कहा। गुलाम रसूल झुक गया। इमरान उसकी पीठ पर चढ़कर अंदर कूदा और फिर गुलाम रसूल ने प्रोफेसर के सहारे दीवार पर चढ़कर हाथ लटकाया। प्रोफेसर उस्मान ने हाथ का सहारा लिया और कुछ जोर उन्होंने दिखाया। कुछ गुलाम रसूल ने खींचा और वो भी दीवार पर चढ़ने में कामयाब हो गए। फिर दोनों अंदर कूदे। अंदर आने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि इमरान किसी से लिपटा हुआ है और वो दोनों गुत्थम गुत्था हैं। प्रोफेसर और गुलाम रसूल दोनों पर इस हकीकत का इंकशाफ हो चुका था। शायद इमरान वहीं पर कूदा था जहां कोई मौजूद था। प्रोफेसर ने कुछ देर तक ये अंदाज़ा लगाया, यहाँ कोई और तो मौजूद नहीं। अंधेरे की वजह से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वहाँ घास के अलावा पौधे भी थे। आसमान पर सितारे नहीं थे, बदली भी थी, इसीलिए अंधेरा बढ़ गया था।
गुलाम रसूल ने झपट कर इमरान के मुकाबल का गला पकड़ लिया और दबाने लगा। वो शख्स बुरी तरह मचल रहा था मगर आवाज़ निकालने से कासर था, क्योंकि उसके मुंह पर इमरान की हथेली ढक्कन बनी हुई थी। गुलाम रसूल ने थोड़ा सा जोर लगाया और वो शख्स ठंडा हो गया। इमरान उसे छोड़कर खड़ा हुआ, फिर बोला, इन लोगों ने अपनी हिफाजत का भरपूर बंदोबस्त किया है, यकीनन उसे हमसे खतरा लाहक होगा, तभी उसने चौकीदार पर तकिया नहीं किया। यहाँ और भी मुहाफ़िज़ हो सकते हैं। हाँ, हमें भी अंदाज़ा है, इमरान ने सरगोशी में कहा। ऐन उसी वक्त इमरान को क्यारी के पीछे कोई चीज़ हिलती हुई नजर आई और उसने बड़ी तेज़ी से उस पर छलांग लगा दी। वो जो कोई भी था गज़ब का फुर्तीला था, फौरन ही अपनी जगह से हट गया। इमरान की मदद के लिए गुलाम रसूल ने भी छलांग लगाई और उसका जंप कामयाब ठहरा। वो एक शख्स को साथ लेकर नीचे गिरा था। इमरान ने अपना दाहिना पैर उसके सीने पर रख दिया। गुलाम रसूल ने एक हाथ से उसके जबड़े पर घौंसा मारा और दूसरे हाथ से उसकी कलाई को पकड़ा। तब उस पर इंकशाफ हुआ कि हाथ में पिस्तौल है। गुलाम रसूल ने उस शख्स की कलाई मोड़ दी और ये काम उसने बिजली की सी तेजी से किया। साथ ही साथ उठने घुटने से मध्य मुकाबले के पेट में कई ज़रबें भी लगा दी। उसके हलक से कराहें निकलती थी मगर वो चीखा नहीं था।